Hello everyone, I am Dr. Niti Chawla. I welcome you all in this lecture. In this lecture, I am going to discuss how can you determine percentiles for continuous series data or data having frequency distribution with class intervals. Here I have taken an example. In that example, you can see that there are this is variable, that is marks obtained by the students have been given in the form of class interval, that is 0 to 7, 7 to 14, and this is the number of students or the frequency. Okay, such type of in this you have to determine percentile 40 or 40th percentile. Okay, now to determine the percentile, your first task is to arrange the data into ascending order. Here the data has been already arranged, so there is no need to arrange the data. That is, you can see that 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, already the data is present in ascending order, so there is no need to arrange it. अगर वो ascending order में ना दिया होता तो आपको उसको ascending order में पहले arrange करना है. Thereafter you have to determine the cumulative frequency. This is the frequency. From this frequency you have to determine the cumulative frequency. In this way, this is the first frequency, that is 3 plus next frequency 4, 3 plus 4 7, 7 plus 7 14. In this way you have to determine the cumulative frequency. After determining the cumulative frequency, you have to determine n. N is the summation of frequency. This is the frequency and you have to take the sum of all these frequencies. This has come here 50. Okay, after determining n, you have to find out the position of the percentile by using the formula in by 100. Here I is the percentile that you want to determine. Here यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटाइल 40. तो हम यहाँ पर i की जगह पे क्या पुट करेंगे, 40, और n हमने अभी डिटरमाइन किया ही था, डेट इज 50, तो आपने वही पुट करना है. हेयर यू विल गेट द पोजीशन ऑफ द परसेंटाइल, दैट इज 20. तो यानी कि अब तक आपने क्या क्या किया, अरेंज द डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर. आफ्टर अरेंजिंग आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के बाद आपको परसेंटाइल class you have to determine the position of the percentile. Okay, after determining it, you have to determine the cumulative frequency that is just greater than this position. Okay, now in the table you can see that the frequency which is just greater than 20, here it is 25. Okay, अब इसी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी की कोरस्पोंडिंग क्लास आपने फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसी के सामने क्या क्लास है. दिस इज 21 टू 28. दिस इज योर परसेंटाइल क्लास. ओके, तो यानी कि आपने क्या किया, डाटा को अरेंज किया इन द असेंडिंग ऑर्डर, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद यू हैव टू फाइंड आउट द एन. आफ्टर फाइंडिंग एन यू हैव टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द परसेंटाइल क्लास के लिए आपने सोल्व किया in by 100. देयर आफ्टर आपने क्या किया कि उसी फ्रीक्वेंसी से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास जो है फाइंड आउट की. दिस इज योर परसेंटाइल क्लास. नाउ हमारे पास परसेंटाइल क्लास आ गई है 21 टू 28. आफ्टर डिटरमाइनिंग इट, आपने परसेंटाइल फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना है. इन दैट फॉर्मूला देयर आर डिफरेंट टर्म्स आर देयर. दिस L means lower limit of the percentile class. Suppose percentile class क्या है हमारी, 21 to 28. Okay, तो इसके अंदर lower limit 21 to 28. Okay, तो इसके अंदर lower limit क्या होगी 21 और higher limit क्या होगी 28. तो यानी कि यहाँ पर हमने क्या रखनी है, lower limit. तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 21. ओके, in by 100 आपने अभी सोल्व किया ही था, जो हमारा 20 आया था, डेट इज द पोजीशन ऑफ द परसेंटाइल. और CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास विच इज जस्ट प्रिसीडिंग द परसेंटाइल क्लास. जो परसेंटाइल क्लास है
उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपने यहाँ पर पुट करनी है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटाइल क्लास की कितनी है 25, इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 14, तो हमने उस फॉर्मूला में क्या पुट करना है वहाँ पर 14। ओके, नाउ हेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ परसेंटाइल क्लास। अब इस टेबल में अगर हम देखें कि हमारी परसेंटाइल क्लास क्या है, परसेंटाइल क्लास है 21 to 28, तो इसी की ही फ्रीक्वेंसी कितनी है 11, तो हम इसी फ्रीक्वेंसी को उस फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, एंड एक टर्म हमारे पास रह गई, दिस इज एच। एच इज द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब है कि जो भी आपकी क्लास है, ओके, यहाँ पर दिस इज हायर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास ये क्लास विड्थ या फिर क्लास इंटरवल आ जाएगा। ओके, तो आपको एच की जगह पर ये पुट करना है, तो 28 माइनस 21 इट इज इक्वल टू 7, तो आपने यहाँ पर ये पुट करना है। ओके, तो ये सारी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 21 वाज द लोअर लिमिट ऑफ द परसेंटाइल क्लास, 20 जो हमने IN/100 सोल्व किया था, 14 वाज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द class just preceding the cumulative class, f was the frequency of percentile class, 7 was the class width। तो ये इन सबको हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया 24.81, दैट इज परसेंटाइल। 40 को आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो, दैट इज 25। So in this way you can determine the percentiles. Thank you.